आज सुबह सुबह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਧਨੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗੋਭੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੋਭੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣੇ ਇੱਧਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਜੀਓਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੋ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਬੀਬੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇਵੇ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਤਨੀ ਜਵਾਨ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਇਤਨੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਤੋਬਾ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਭੀ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਤਨੀ ਪਸੰਦ ਗੋਭੀ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜੀ ਬੀਬੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਚਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਰੂਹ ਮਹਿਕ ਉੱਠੇ ਗੋਭੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਰਸੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈਏ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲਤੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ क्यों कहते सन कि हांडी पका लीती हांडी तो इसको कहते हैं जो केतली है
तो केतली को पंजाबी में हांडी कहते हैं। लेकिन पता नहीं कि हमारे पंजाब में, लाहौर में, हम तो लाहौर में रहते थे, तो ये एक दूसरे से आज की हांडी पकाई है, मतलब ये हांडी में, ये पूछने की बजाय वो कहते थे आज क्या हांडी पकाई है। तो वो बताते थे आज मैं गोश्त में ये डाल रही हूँ, या आज मैं चिकन बना रही हूँ। वैसे एक मैं बात बताऊँ, पहले जो हम जब छोटे होते थे, मैं अपने बचपन की ये बातें कर रही हूँ, उस वक्त चिकन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। उस वक्त बकरे का गोश्त ही चलता था, बकरे के गोश्त का पुलाव चलना, बकरे के गोश्त में हर चीज़, हर सब्ज़ी डलनी, क्योंकि हमारे लाहौर ये हर सब्ज़ी गोश्त में डाल के या कीमे में डाल के खाते हैं। खाली गोश्त नहीं, हम लोगों ने कभी खाली खाली सब्ज़ी नहीं कभी खाई। हत्ता कि दालें भी कुछ ऐसी हैं, जैसे कि चने की दाल है, उसमें हम लोग डालते हैं गोश्त। इसी तरह माश की दाल है, वो गोश्त में भी पकती है और कीमे में भी पकती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें गोश्त का कीमा नहीं डलता लाहौर वाले। तो मगर ये गोश्त चलता था, बस बकरे का गोश्त चलता था। उसमें ये नहीं होता था कि हम चिकन पकाएं। और चिकन जब पकना ना, तो वो ख़ास कोई मेहमान आ रहा है, तो कोई मेहमान आ रहा है तो उसके लिए ना चिकन ले आए, आज वो फलाना आ रहा है, आज चिकन का शोरबा बनाएंगे, साथ पुलाव बनाएंगे। लो जी, पुलाव मटन का बनना, लेकिन साथ चिकन कोरमा होना, और साथ और जो एक दो डिशें और बनती थी, इस तरह बना के रखनी। मगर वक्त के साथ साथ देखिए, वो एक ताकत वाली चीज़ भी थी। मटन जो है वो ताकत वाला था। मगर यूँ जो हम बड़े होते गए, मटन थोड़ा थोड़ा पीछे जाता गया, और चिकन जो है वो हमारे दस्तरखानों पे, हमारी टेबल्स पे ज़्यादा सजने लग गया। अजीब सी बात थी वैसे। और आज ऐसा है कि चिकन ही चिकन है, और मटन ज़्यादातर कोई खाना पसंद ही नहीं करता। मटन भी जो खाते हैं वो खाते हैं, लेकिन चिकन की अपनी बादशाही है इस वक्त, जो कि बड़ा कहते हैं मुजरे सेहत है। ज़्यादा चिकन की खपत होने की वजह से चिकन को भी 2 नंबर तरीके से, ब्रॉयलर चिकन जो होता है वो 3 दिन में, या कहते हैं 4 दिन में बन जाता है। वो अजीब सी बात है वैसे मेरे लिए तो। मगर आजकल गोश्त भी कहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक गोश्त नहीं है। जो बकरे का गोश्त है उसमें भी मतलब वो कुछ ना कुछ डाल के बकरे को भी, मतलब जब वो ज़िबा होता है तो उस वक्त उसमें कुछ करते हैं तो गोश्त बढ़ जाए। अल्लाह जाने भाई, ये 4 पैसे कमाने के लिए इंसान किस दौड़ में लग गया। ये देखें, मैं गरम मसाला भी इसमें डालती हूँ एंड पे, 1 चमची गरम मसाला डालूँगी भर कर, उससे ज़रा ना एक खुशबू हो जाती है। ये खुशबू के लिए मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी डलता रहा है, और हम भी डाल रहे हैं। हमने अपने अम्मी जी को देखा, और अम्मी जी के बाद जब हमने घर गृहस्थी चलाई तो अपनी सास को देखा, सास के बाद खुद हम ये जब पकाने लगे तो हमने भी यही काम पकड़ लिया। और इससे वाकई एक टेस्ट आता है जब आप नहीं इसको करते हैं ना। मैं अब इधर करती है इसको दूसरी साइड पे, ताकि उस पर सेक रहता है, काफ़ी देर तक सेक रहता है वो। तो मेरा ख्याल है आधा घंटा तो उस पर सेक रहता है। ये जो लाइट है ना, ये छोटी लाइट, ये जलती रहती है जब तक ये चूल्हा अपनी पूरी पीक में ठंडा नहीं हो जाता। ये लाइट हमेशा छोटी जो है ना, ये जलती रहेगी। इसका मतलब वो आपको वार्निंग दे रही है कि होशियार रहे हैं, अभी चूल्हा गर्म है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद, और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नए व्लॉग के साथ। पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स, मेरे व्लॉग फैमिली मेंबर, सबको मेरा आदाब अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुश रहें जिधर भी हैं, अपनी फैमिलियों के साथ, अपने वालदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ
खुश रहें, खुशियाँ आपका दामन भर दें। जो खाएं वो लम्हा आपके लिए बरकत का बाइस बन आए। अपने आप को जो है ना ख्याल किया करें, अपने आप का केयर किया करें, अपने आप को संभाला करें, क्योंकि ये आपने अपने आप को संभालना है। जब आप कई दफ़ा औरत बड़ी थकी होती है, हम थके हुए भी काम करती रहती हैं, ये हमारा एक अलमिया है। मैं समझती हूँ कि औरत साथ जो है ना, वो जो घरेलू औरतें हैं वो थकी भी हुई हैं तो वो अपना काम करती रहती हैं, अपने बच्चों के लिए लगी रहती हैं। तो उससे ये होता है कि उनकी सेहत, उनकी तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है और ख़ुद वो जल्दी ढल जाती हैं, जल्दी डाउन हो जाती हैं, और फिर वो जिस शौक़ से काम कर रही होती हैं उस पर असर पड़ेगा ना। आप खुद मुझे बताएं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको कोई तकलीफ़ हो, कुछ हो, तो अपने आप को पहले केयर करें अपनी, फिर साथ साथ घर की भी केयर होती रहती है। फिज़ा जानू बाहर बैठी है, बाहर जाके देखूँ। अभी मैं जो ना, हाय अल्लाह, बाहर देखती हूँ फिज़ा जान किधर है, मेरी सोनी बेटी। बाहर बैठ के क्या बातें बुतें कर नहीं, अंदर उदास हो जाती है फिज़ा, अंदर उदास हो जाती है मेरी बेटी। मैं बता रही हूँ इनको कि अंदर उदास हो जाती है तो बाहर जाके बैठ जाती है, रौनक रौनक करें। नहा के आती हूँ ना, ज़रा छेक लग जाता है थोड़ा सा। ये देखें जी, फिज़ा ने गर्मियों के कपड़े निकाल निकाल के ना पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम जो बदल गया तो अच्छे लग रहे हैं फिज़ा बड़े। अभी मेरी बात हो रही थी ना, अच्छा मैना को मैंने की है बेटा, तो मैं ना अब्बा ही मैसेज छोड़ दिया उसको। ओके ये मैंने किया। ओके ओके। हाँ, तो किताब ले आया कर, किताब ख़त्म कर ली है जो लाए हुए हो लाइब्रेरी से? थोड़ी सी रह गई है। तो कौन सी डेट है उसकी? 23। A few moments later. बेटा क्या कर रहे हो? कुछ बना रहे हो आज? क्या? ओह, मुझे जान कल बात कर रहे थे ना आपसे ब्राउनी के मुतालिक। चलो ज़बरदस्त। इसको क्या करोगे? थोड़ा सा दूध डालूंगी बीच में। अभी दूध डालोगे ज़रा सा? हाँ, ये भी दूध ठंडा पड़ा है, इसको थोड़ा गर्म कर रहे हैं। तो ये बेटा गरम इसमें माइक्रोवेव में कर लेते हैं पुत्र। नहीं, तो बहुत कम करना है, अच्छा अच्छा, ठंडे से उसको खत्म कर। ठीक है। तो ये जो साल लग गया ये भी उतर जाएगा सारा। अभी उतर जाएगा। तो चीनी भी डाल दी? हाँ, सारा कुछ डाल दिया, बस दूध डालना। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, फिज़ा जानू ब्राउनीज बनाने लगी हैं आज, क्योंकि इन दोनों को, फिज़ा को और मोइज़ को पसंद है। लेकिन फिज़ा इसलिए ज़रा रुक रही थी कि थोड़ा मोटापा, थोड़ा मीठे से इज्तनाब करें। हाँ जी, क्या कहती हैं? यस यस यही हो रहा है ना फिज़ा? यस यस। इधर देख के बात करें ना। हाँ जी, इधर होना। ले आओ, पानी हो गया बस। नहीं, अभी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा ठंडा। दूध है कि पानी है? पानी और दूध। दूध है। ये मैंने गाइस चॉकलेट रखी हुई है काट के, ये डालूंगी। और इधर ये मिक्सचर है, अभी इसको मिक्स करूंगी। और ये दूध रखा हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हो, गर्म हो जाए बस, इसकी बस गरमाइश ख़त्म हो जाए। ये देखें गाइस, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे जो मैंने चॉकलेट काट के रखी हुई है, इसको डाल देते हैं बीच में, ताकि थोड़ा चॉकलेटी आए बीच में। वेरी गुड। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बीच में। और इसको फिर मैं बेक होने रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें गाइस, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। मैंने ब्राउनी का मिक्सचर इसमें डाल दिया बटर पेपर लगाकर। और यहाँ पे हमारा ओवन जो है वो 400 डिग्री पे प्री हीट हो रहा है। जैसे ही प्री हीट होगा तो इसको मैं इधर अंदर डालूँगी और फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। खैर दुआ करें बस अच्छी सी बन जाए इंशाल्लाह। ये गाइस, हमारा ओवन जो है वो प्री हीट हो गया। अब इसके अंदर हम पकड़ के इसको रख देंगे अंदर और इसको 25 मिनट के लिए भूल जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2, तो मैं इसको तकरीबन पहले 2:15 बजे देखूंगी, एक नज़र मारूंगी। उसके बाद फिर 25 मिनट में होती है ब्राउनी, तो फिर 25 मिनट बाद निकाल लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ओके बाय। ये देखें गाइस, हमारी ब्राउनी जिसके ऊपर क्रिस्पी टॉप भी है। अच्छी ब्राउनीज़ की निशानी होती है कि उसके ऊपर ये क्रिस्पी सी टॉप भी हो और नीचे फुल गोई हो। अभी नीचे का तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी ये देखें, ये थोड़ी गंदी निकलती है क्योंकि
साफ़ नहीं निकलती क्योंकि ब्राउनी है। केक हो तो वो साफ़ निकलती है, इसके अंदर थोड़ा वो चॉकलेट होती है इसलिए ये इस तरह निकलती है। इसकी निशानी है कि बन गया। तो अब इसको 1-2 घंटे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए और फिर इसको काटूँगी और आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये ब्राउनी ठंडी हो गई और मैं आपको दिखाना ही भूल गई। हमने खा भी ली है 2-3 पीस। मज़ेदार बनी है। और ये देखें, ये देखें कितनी गोई बनी है और कितना मज़े की बनी है। अभी ये दिखा रही पहली दफ़ा कनाडा में पाकिस्तान जैसी मेरी ब्राउनी बन गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छी बनी है ना पप्पा जान? बहुत ज़बरदस्त। अरे पप्पा जान आप मेरे लिए पराठा बना रही हैं। हाँ, मैंने कहा फिजा ने ब्राउनी बहुत अच्छी बनाई है तो जरा फिजा को मैं पराठा खिलाऊं बेहतरीन सा गोभी गोश्त के साथ। गोभी गोश्त के साथ, चल क्योंकि इसने कहा पराठा अच्छा लगेगा। मैं तो मक्खन नहीं लगा के वैसे रोटी सूखी रोटी के ऊपर सूखी मक्खन रोटी खा लगा लेती हूँ मैं, यस उसके ऊपर मक्खन लगा के। लेकिन फिजा जानू का था कि मुझे पराठा। पराठा, तो मैंने कहा हाँ, ये खाती कभी भी नहीं खाया इसने पराठा, तो इसे बना दूं। ये ब्राउनी इसने बहुत अच्छी बनाई है, आज मेरी फेवरेट बनी है पाकिस्तान जैसी। लेकिन मुझे कभी कभी ना, ये पहले इसने 1-2 दफा बनाई है तो मुझे जरा एकदम से था ना, मुझे ऐसे फीलिंग आती थी जैसे गरम कोई घर एकदम मुझे ऐसे कुछ हिद्दत सी हुई है अंदर। लेकिन आज मैंने खाई है तो मैं 2 खा गई हूँ, बल्कि 2 पीस इसने किए हुए थे छोटे छोटे। तो ये हम इसके लिए पराठा बना रहे हैं, अपने लिए रोटियां बना रहे हैं। ये गया पराठा फिजा का ऐसे, ये देखें तवा जितना पराठा माशाल्लाह। A few moments later. नहीं जी, फिर आ गया घोड़ा सवारियों को लेके निकल रहे हैं। ये घोड़ा वो घोड़ा है जो टांगे के आगे नहीं लगा होता, वो गाड़ी में लगा होता है, गाड़ी चलाता है। तो आज मैंने कहा कि मैं नहीं चलाऊंगा, फिजा को कहा वो चलाएं। तो आज की गाड़ी, आज का घोड़ा जो है फिजा जान बन जाएंगी थोड़ी देर के लिए। उनकी प्रैक्टिस भी करवानी है ना, प्रैक्टिस भी करें अदरवाइज़ वो भूल ना जाएं। तो अभी मुएस को लेने जाएंगे, फिर आगे देखें कोई और काम काज। बदोबदी निकालते हैं काम हम, वैसे सच्ची बात बताऊं होते तो हैं काम, ये नहीं कि काम नहीं होते, बड़े माइनर से होते हैं, वो बंदा कभी भी कर सकता है। लेकिन बस ऐसे ही अब जाना है कि जी वो टॉफ़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है, साथ वाले बच्चे उनको भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार वो टॉफ़ी लेने जाना है, तो टॉफ़ी लेने के लिए पूरा ख़ानदान चल पड़ा है। बस एक बहाना चाहिए यार, खुश रहने का, बिज़ी रहने का, दैट्स ऑल। कोई इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही एक अच्छी यादें भी हो जाती हैं, इकट्ठे भी रहते हैं, रास्ते में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी की बात करते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, किसी को मशवरा देते हैं। बच्चे भी समझते हैं माँ बाप कैसे हैं, क्या कह रही हैं। कुछ दीन की बात होती है, कुरान की होती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं सुनते हैं, कहीं भी खुश नहीं भी होते। तो ये इस तरह बड़ा ज़रूरी होता है एक दूसरे से मिलते रहना, बातें करते रहना, गिले शिकवे भी करते रहें और उसको रिजॉल्व भी करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है आपका आपस में मिलना जुलना। कुरान में अल्लाह ने सूरह इमरान में फरमाया है ना कि उनको बुलाओ डिस्कशन के लिए। उनका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी दुश्मन को ही बुलाओ, वो अपने प्यारों को भी बुला सकते हैं। मेरा बेटा अगर नहीं समझ रहा तो मैं उसको डिस्कशन के लिए बुलाऊं, बीवी नाराज़ है उसको डिस्कशन के लिए बुलाऊं और डिस्कस करें, उनके जो मसला है, उनको जो पसंद नहीं है बताएं कैसे उसको रिजॉल्व करना है, और एमिकेबली दोनों अपना जो है मौक़िफ़ बयान करें, उसमें से रास्ता निकल आता है। ऐसा है ही नहीं कि रास्ता ना निकले, बिल्कुल निकल आता है। तो कोई भी हो उनको डिस्कशन के लिए बुलाएं और करें, अपना मामला डिस्कस करें। चलें जी, ये लेक्चर लंबा हो गया है, इसको शॉर्ट करते हैं और दिखाते हैं। फिज़ा जान गाड़ी स्टार्ट करके बैठी हैं, मैं इधर अपना वाटर बॉटल अंदर रखूं और फिज़ा जान को दिखाऊं कि क्या कर रही हैं फिज़ा जान। जी शोफर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये ले, मैं बस उनको लेके आता हूँ। मैडम बाबरी जो हैं वो तैयार हो गई हैं शायद, उनको लेके आ रहा हूँ। ये पीछे हमारे पिछले घर में जमैकन ब्लैकी
ये बड़ा डिस्को मैन है, डिस्को चलाता रहता है म्यूजिक। आ जाओ जी, लेट हो गई है, आ जाएं। ये आपके व्यूअर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखें सीढ़ियों में ये व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं, ये प्लीज़ आ जाएं। ये बड़ी ज़्यादती है, आप व्यूअर्स को भी इंतज़ार कराती, शौहर की तो खैर है, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स को इंतज़ार कराती हैं आप। व्यूवर्स को हम कभी नहीं इंतजार करा सकते, सॉरी हम अपने प्यारी ये फैमिली है हमारी। हाँ। ये व्यूवर्स नहीं है, ये हमारी फैमिली है। हमारी राहत बहन ने जैसे कहा कि आप ऐसे लगते हैं जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। बिल्कुल है। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर जब आना है ना तो राहिर फिर आपने हमें बुलाना है, फिर हम आपकी तरफ आएंगे, इंशाल्लाह, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आ जाएं, आपने बड़ा इंतज़ार कराया मुझे भी चलो और इनको भी, और अब बेटा भी इंतज़ार कर रहा है आपका उधर। अच्छा। आपको में हम आए हैं, इतना रश है तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ लूट मार मची हुई। पता नहीं, मैं हैरान होती हूँ, लोग इतनी ख़रीदारी करते हैं, लोग इतनी ख़रीदारी करते हैं, हैरत होती है। अभी लाइनें भरी हुई हैं, ये देखें कैश, कोई फारिग नहीं। और इधर देखो तो इधर अलहदा रश है, इधर देखो तो इधर अलहदा। माय गॉड, ये बाय सेल्फ है जो लोग कर रहे हैं, इसकी भी इतनी लंबी लाइनें हैं पीछे। फिर कास्को भी बड़ी सुनी गई इसे, सच में। बस हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। कास्को में आई हूँ और कास्को में इंतहाई रश है, बहुत ज़्यादा रश। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, अभी दिखाती हूँ। रश देखें, ओह, जिधर मैं कैमरा दोहरा रही हूँ आपको रश नजर आएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? हाथ साफ करना किधर? बाहर। मुझे लगा इधर, मुझे भूल गया था वहाँ वॉशरूम भी है। सॉरी। 1 साल से बोल रहा हूँ घबराने की बंद। चल साल मुझे यहाँ आए हुए नहीं। मैं छोटी ईद बनाई थी तो डोंट। हाँ तो 6 महीने हो गए हैं उस बात को। 2 महीना हुए हैं सर। ये सारा तो ब्लॉग में जाना। मैं तो हमने पकोड़े फ्राई किए थे, आपके लिए रखे हैं। मैंने गिव अप कर दी। ओ तब से सोने का इतना मुझे गिल्ट फील कराया। शाबा को पता भी है, सही में होगी इसका। लेकिन शाबा भी मसाले डाल रहे हैं बीच में। बीवी की थी, मैं वही कह रही थी शाबा। मैंने इसलिए आपको माँ आइसक्रीम भी नहीं खाने दी। और मैं वहाँ सोच रही, मैं बता दूं, इतनी मुझे सुनाई जा रहे। फिर मैंने कहा फिर सब्र का फल मीठा होता है। और मुझे तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली बनी है। अच्छा, इतनी बहुत मजे की बनी है। अच्छा, थोड़ा मुझे तो सही में सरप्राइज कर दिया। आपको नहीं पता चला? नहीं मैं कहा वीडियो ऑन करूंगी तो शायद पता चल जाएगा, नहीं, मैंने कहा वैसे ही ब्लॉग बन रहा है। इसलिए मैंने ऐसे नहीं बनाई, ऐसे बनाई है। है ना, अच्छी है ना? सही है। गोई और फजी है बनी है। ये मेरी पाकिस्तान से बहुत क्लोज बनी है। लो जी व्यूवर्स, अब आ गया इसका। अब आपको खुदा हाफिज करते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपसे गुफ्तगुएं होंगी, मुलाकातें होंगी, बड़ी बातें होंगी। और आप भी बातें करना मत भूले कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है? और वैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर आपने कुछ पर्सनली मुझे बात करनी है, सेंड करना है, कुछ कहना है, तो आप हमारा जो एक कनेक्शन है जो हमने दिया हुआ है आपको एक अपना, उस पे जाएं। फ़िज़ा वाले में जाके उधर आप कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे जाके, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कर सकती हैं। मेरा जो कि व्लॉग बना हुआ है शाहीना असद का एंड फैमिली, शाहीना असद एंड फैमिली, ओनली शाहीना असद में, तो आप उसमें भी कर सकती हैं। तो ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, इसको जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकती हैं शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स आएंगे, जमा होंगे, जिनमें कुछ आपने पूछा होगा
तो इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। और जो भी मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरी बच्चियाँ जो भी हमें लिखती हैं इस व्लॉग के बारे में, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमें प्रेज़ करती हैं, कमेंट्स करती हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ने चाहा तो रब रखा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।